it's very difficult to get into the market because अगर आपने शुरू भी कर लिया agency, if you don't have clients to service to, then it gets very difficult to make both ends meet. We had a very clear intent in mind, which was about to shut down. It was a loss-making agency. When I was working in the industry, I found out that there are a lot of trust issues. Creator cult happened through a fight with my ex-boss that I decided नहीं अब मेरे को खुद का करना है कुछ अच्छा करना and we converted that loss-making company to a profit-making company. So I thought somewhere ethics is not a part in this industry. We have not spent a single paisa on marketing. We have clocked more than 2 crore revenue. उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है सूर्य, नहीं तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे. Why people should believe you? So, hello everyone. Today we have a very special guest, Sweta from Creator Cult. So, Sweta runs an agency that's all about creating smart and effective influencer marketing campaigns. And Sweta worked with some big brands like Signature, Wow, Snitch, and many more, brands. So, she also manages 2 lakhs plus influencer. So, personally, I'm very excited for this podcast and me and Sweta decided so long that we'll do the podcast. So first of all, thank you so much, Sweta, for joining us today and taking out time to join on my channel. So thank you so much. It's my pleasure to have you on the podcast. So thank you. Likewise, Surya. Thank you so much for having us over. Thank you. Thank you, Sweta. So I'll start with my first question. Sweta, like you and me both are agency owners, but a lot of people who are watching this want to, become agency owners too. So can you briefly explain about your journey? Like how do you figure out what do you want to start? Why do you want to start an agency? How do you want to start an agency? Can you give us some checklist कि ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए if someone wants to start their agency, ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? So can you give us about that? Sure, Surya. So, Surya, when you are about to start an agency, it's very important to have a clientele in place. I mean, बिना अपना homework it's very difficult to get into the market because अगर आपने शुरू भी कर लिया agency, if you don't have clients to service to, then it gets very difficult to make both ends meet. To get adequate funds so that you can even run a team who is dependent on you. Second thing is, अगर आप service industry, obviously agency मतलब you are providing services, so it's very important to have a full control of what services you want to get started with. You can get started with very handpicked services. Could be like if you are strong in nano, you can get started with nano creators. If you're strong in macro creators, you are managing exclusive creators, then also you can get into that space. So having a set clientele, वो आपके पास तभी आता है when you already have an ongoing relationship in this industry where people trust you with your work. So agency line is more of a people centric business where people work with you as a person more than an agency name, because आप खुद एक startup हो. How will you establish yourself? So when I started Creator Cult, Surya, we had a very clear intent in mind. Like I come with almost 18 years of experience from media sales, hotel sales background. So wherein I had like a fixed clientele. So before starting my own agency, I was working in some agency which was about to shut down. It was a loss-making agency. So where I assisted the agency in setting up their own influencer marketing vertical, making the loss-making vertical profitable. So managing the entire set, Wow. right from business development to operations, and managing the operations team as well to get the work done for the brands. So that's how, we got confidence that, we can also get started of our own. The reason why we started this agency was because when I was working in the industry, I found out that there are a lot of trust issues. I think many a times the agencies commit an X thing to the brands, but they don't deliver, and then they start blaming the brands. True. So communication is very important. It's not a blame game. The brand is coming to you for a support, and it's our duty as an agency to render that support to the brand.
which I found missing in most of the agencies and including my previous agency as well. तो मैं जिस एजेंसी में पहले काम करती थी ना सूर्य, that was a loss making agency. So they were into event marketing. They didn't know कि influencer marketing करके भी कोई vertical है. So we started with my set of media connections. I started going all out in the market where I realized that there's a need for influencer marketing. That's how we set up the vertical, and we converted the loss making company to a profit making company. जो कंपनी बंद Amazing. होने वाली थी उसको मैंने फिर ऑलमोस्ट 2 साल पहले ऑल बाय माई Wow. सेल्फ. So yes, that gave me a lot of confidence, but at the same time when we saw that there are unethical practices, where the agency is asking me to commit extra to the brands, आप इतना sales लेकर आओ, so that if a brand is putting in an X amount, you commit 2x of sales to them. This is not possible. As an agency, we can't commit कि आपको इतना sales आएगा. So I thought, somewhere ethics is not a part in this industry. So Creator Cult was formed with a clear mindset. Obviously, we are there in the business to make money, but at the same time, not at the cost of brand's trust. So if you see, Makes we sense. have more than 80% customers who keeps coming back to us. And they do not only come back to us, they Wow. also refer us more clients. Till date, we have not we have not spent a single paisa on marketing. Yes. And we have That clocked more than 2 crore revenue, which was till March this month, this year. that's so amazing. That's so amazing. Amazing, Sweta. So, up to this question, tell me when you have started. Like, I want to walk you through your journey. Like, when you just started, tell me about your first client. Like, how did you get your first client? And, how do you land the deal? Like, if someone is just starting, what they can do to get there. Like, para client pana is, difficult. And tell me also about your highest Correct. paying client. How do you close these two clients? Right. So the first question, my first deal, I guess even before we started off, the clients trusted us. So when we started doing this cold messaging in the market that we are going to get started, they all were very supportive. They didn't even ask me कि आपकी टीम कितनी बड़ी है, कौन कौन रहेगा. They said we trust you, Shweta. So आप मेरे को काम करके दोगे. So that trust was enough to get started, Surya. So मेरे पास clients थे even before I registered my company. मेरे पास जीएसटी नहीं था, बट मैंने ऑलरेडी तब तक आई थिंक 5-6 लाख का कैंपेन, बट आई कुड नॉट बिल्ड द क्लाइंट्स. Amazing. Amazing. So you already have built your personal brand on the first place. Then you launch the, agency. Correct, correct. So as I told you, na Surya, prior to me starting Creator Cult, me and my co-founder, Shayak, he's my co-founder and he's also my college friend. We did BSc together. So he comes with a 20 years of experience in the digital marketing space. He runs his own digital marketing agency. So I went to him. I said कि Shayak, I want to get started because मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. I'm not liking the unethical practices which are prevailing. हम बोलते कुछ और है, देते कुछ और है. This is not something which I personally I vouch, because as a salesperson I always had this thing, Surya. एक सेल्स पर्सन को सैलरी ना उसके क्लाइंट्स देते हैं, कंपनी नहीं देती है. So True. so the Wow. day you don't give sales now, the company doesn't need you. So you have to be very loyal to your clients, your customers. They are gods for you. So this Agree. is something which I believed in. So I said कि no, I want to create a company which gives back to his customer. हम वो client नहीं लेंगे. अगर हमको जरा सा भी डाइसी ब्रीफ लगता है, हम client को पहले से ही बोल देंगे कि ये नहीं चलेगा, हमको ऐसे पैसे नहीं कमाने. So yes, this is our journey, how we started. We already had established brands in the market with whom we already had relationships because of our previous journey in different organization. So that enabled us to get uh, quick ROI in the business. Amazing, Sweta. Amazing. So, अगर कोई ऐसा है, like someone, like a complete beginner, and they want to,
स्टार्ट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड कि आपको काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री में एंड ऑल दोस थिंग। लेट सपोज इसने कुछ काम किया ऑलरेडी, ठीक है, दे नो समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है बट दे नो समथिंग, राइट, एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर एजेंसी, यू नो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। सो कैन यू टेल अस अबाउट द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप कि क्या होना चाहिए जिससे कि यू नो वो भी 2 करोड़ का रेवेन्यू। सो व्हाट विल बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? Ideally, Surya, एज अ फ्रेशर ऑल्सो, सपोज मेरे को कुछ भी नो हाउ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, आई शुड स्टार्ट वर्किंग अंडर समवन। आई शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। मुझे कोई चीज़ में घुसना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री। यू नो, आफ्टर वर्किंग फॉर समवन, उस आप किसी कंपनी में ज्वाइन करो या आप कहीं पे इंटर्नशिप करो या यू नो, बिकॉज अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं देगा। ट्रू। So it's very important to work under someone's guidance, understand the trades of the business before you get started of your own. मेक आई सेंस। थिंक उसके उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है सूर्य। नहीं तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। वाई पीपल शुड बिलीव यू? बिकॉज इट्स अ वेरी पीपल सेंट्रिक इंडस्ट्री। If somebody doesn't know me, they will not entertain me. Or if I don't ट्रू। go to you through someone's reference, you will not listen to me. Who is Shweta? That's so true. Reference works a lot in, you know, सो मैनी अ agency. टाइम्स मेरे पास ब्रांड्स आते हैं, बोलते कि मुझे श्वेता जी आपका रेफरेंस इनसे मिला। सो दे आर ऑलरेडी 90% कन्वर्टेड क्लाइंट्स। Yes, that's so true. एक और चीज, लाइक सॉरी, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो अभी बहुत कुछ पूछना है। नहीं सो नहीं, व्हाट्स द बताइए। प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स, मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है? लेट्स से कि मैं एक, यू नो, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, कोई भी जो भी हो, आई, लेट सपोज कोई भी एक्स वाई जेड नेम हो। सो हाउ डू यू अप्रोच देम एंड ऑनबोर्ड देम फॉर, यू नो, मी एज ए ब्रांड? Suppose Surya, we at Creator Cult, we already have a pool of 3 lakh plus influencers. Having said that, nobody is exclusive to us. When I talk about exclusivity now, that means the person is managed by our agency. We do not manage creators. We manage creators as per brand's requirement. तो अगर किसी ब्रांड का कोई रिक्वायरमेंट होता है ना, इन अ पर्टिकुलर नीश से, सपोज किसी ने बोला कि श्वेता मुझे ना 50,000 रिपोस्ट कर, वो भी हम लोग करके देंगे। सो वी डोंट हैव अ पूल, बट वी नो द मैकेनिज्म, ये पूल को कैसे रीच आउट करना है। हाउ डू वी रीच आउट टू सच पीपल? एंड अगेन गोइंग बैक, ये सारा पूल आपका तब बनता है जब आप किसी के अंडर में काम करते हो, जो ऑलरेडी रिनाउंड है इस इंडस्ट्री में, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। इफ़ यू वर्क विथ एक्सक्लूसिविटी, अगर आप किसी क्रिएटर को आप मैनेज भी करना, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर आप क्रिएटर के पास जा रहे हो, आप बोलो कि नहीं मैं आपको मैनेज करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपके सारे कोलैबोरेशंस देखूंगा, आई हैंडल ऑल योर कोलैबोरेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। वो क्रिएटर भी आपसे पूछेगा आप मेरे को मंथली कितना दे पाओगे रेवेन्यू, कितने डील क्लोज कर पाओगे, देन ओनली वी शुड हैव यू ऑन बोर्ड। एंड मैनी अ टाइम्स जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं ये खुद ही अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही मैनेज होते हैं, या उनको बहुत बड़ी एजेंसीज, दे ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ अ टाई अप विद देम। एग्रीड। तो देर आर टू थिंग्स, जैसे कि अगर कोई क्रिएटर है काफ़ी बड़ा है तो उसके पास ऑलरेडी मैनेजर्स होते हैं, राइट? करेक्ट। बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनेजिंग स्टार्टअप्स और, यू नो, ब्रांड्स, No, नॉट no, no. We are क्रिएटर्स। we are we are managing even big brands like Imami हो गए, Nelons हो गए. They are very premiums, big FMCG established brands. Anmol Biscuits हो यस गया. यस यस। So these brands, they already have a name in the market. They are not startups. If you talk about the clothing brand Snitch के साथ we are doing a lot of work. So again, which is a D2C space in the fashion industry. So uh, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। लेट्स सपोज कि अगर कोई आपके पास कोई ब्रांड आता है एंड ही सेड कि मुझे पर्टिकुलर इसी इन्फ्लुएंसर से, तो हाउ हाउ डू यू अप्रोच? लाइक लेट्स सपोज कोई, मैं एक एक्स ब्रांड हूँ एंड आई वांट कि आई हैव सीन सम इन्फ्लुएंसर्स, ये 3-4 है, आई वांट टू डू विथ देम ओनली। डू करेक्ट। यू, हाउ डू यू डू दैट? So in that case, we approach the influencers, we try to get their commercials, we talk about the brand's requirement with them,
And if they are interested, we share the commercials with the brand, that this is the commercial they have agreed upon, and then we get the deliverables done. पर वो बहुत एक्सट्रीमली अनलाइकली होता है कि ब्रांड अगर हम लोग को दे रहा है कोई नेम्स, वो उसी के साथ करे, वो मोस्ट प्रोबेबली वो हमसे भी रेट लेते हैं एंड वो किसी और से भी रेट लेते हैं, वो फाइनली कौन क्लोज करता है तो पता। सो वैसे वैसे डील्स ना बहुत जल्दी क्लोज नहीं होते हैं, सूर्य। अच्छा, आप हाउ डू यू अप्रोच ब्रांड्स, जैसे इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, आप पूरा एक डाटा सीट We मेंटेन। also have softwares like, Modash हो गया. There are a lot of softwares from where you can curate the influencers data as well, but then they are paid softwares. So यस। ideally the backward approach is, वो paid software में अभी आप मत जाओ. Instead, build a base by working under someone and then create your own industry, your own ट्रू। agency. Sorry. एग्रीड एग्रीड। तो आप ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करते हो? लेट सपोज आपको अगर एक्स वाई जेड किसी ब्रांड्स के साथ काम करना है, तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू अप्रोच देम? उसको, उसके बारे में आप बताओ कुछ। Predominantly through LinkedIn. And many a times, if you have a happy customer now, the customer will only refer you 4 to 5 more brands. कि कोई अगर जाके उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा एजेंसी है, तो खुद ही बता देते कि तू इससे बात कर ले। सो उससे बड़ी मार्केटिंग और कुछ नहीं होती है। सो दैट्स ट्रू। अपना बेस्ट दो, सो दैट यू गेट लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री itself. People talk about you within the industry. That is very important, and that can only happen with your honest work and good work. हम्म, टोटली एग्री। Secondly, अच्छा आप, LinkedIn is the best way to, reach out to the potential prospect. It should always be the top-down approach. Try reaching out to the director of the company or the marketing heads, and try getting their appointment and explaining them about your service offerings, because वहाँ पे ना आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है, because decision making happens at that stage only. मेक Try सेंस getting in आपको। touch with the decision makers, in short. मेक सेंस। हैव यू ट्राइड कोल्ड ईमेलिंग आल्सो, लाइक मास ईमेलिंग? डू यू बिलीव इन दिस? वो लाइक दे बचपन में करते थे सूर्य। लाइक बहुत इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि लिंक्डइन डीएम्स वर्क करेगा या फिर कोल्ड ईमेलिंग, मास ईमेलिंग बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, वर्क करेगा। सो व्हाट वो डू यू थिंक बचपन आपने? में करते थे। हम जब करियर शुरू किए तो ये सब काम करवाते थे हमारे बॉसेस। गेट क्रैश करना, कोल्ड ईमेल करना, रैंडमली किसी से भी जाके। अभी ऑनेस्टली, सो देर आर टूल्स लाइक अपना मुडाश हो गया, मुडाश, हाइपॉन, even tools like CultureX, and there are a lot of tools which are available in the market and at a very reasonable cost. So yes, you can try that, but again, uh, tools comes at a very later stage. So उससे अच्छा अगर आपकी PR बहुत strong है ना, then you should try accessing profiles through references, through creating a team, जहाँ पे कि आप सिमिलर प्रोफाइल्स के आपके पास, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य, सपोज कि आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा FMCG सेक्टर में या फैशन इंडस्ट्री में। तो अगर आपका एक क्लाइंट उस इंडस्ट्री में फाइनलाइज होता है, आप जिसको बहुत अच्छे से सर्विस कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी प्रोफाइल्स है, ट्राई फाइंडिंग द सेम इंडस्ट्री विद इन, सॉरी, सेम क्लाइंट्स विद इन द सेम इंडस्ट्री. You don't have to do the legwork of again churning the same data. यस, अलग अलग दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, वही 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 आपका XYZ ब्रांड में चला जाएगा। एक अगर कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, फिर वो कोई B ब्रांड में भी चला जाएगा, इफ द सेम इज इन द कॉस्मेटिक ब्रांड। सो आपका वो सेम प्रोफाइल्स ही ऑलमोस्ट यूज हो जाता है विथ इक्का दुक्का अमेजिंग। वेरिएशन। मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। ये आपने मुझे सजेशन भी दिया था लास्ट टाइम जब मिला था मैं आपसे। सो आई आस्क्ड यू अबाउट कि आई एम डूइंग 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ अपनी एजेंसी में, एंड यू टोल्ड मी कि एक चीज़ पे फोकस ऑन वन थिंग एंड गेट क्लाइंट्स करेक्ट, सिमिलर टू दैट नीश, या उस चीज़ में ही करो। सो आई जस्ट करेक्ट, लव दैट करेक्ट। एडवाइस। Makes sense. What do you see about creator economy heading, in next few years? अब क्या लगता है कहाँ जा रहा है? And do you also think like I think so. Do you also think like everyone should be creator, या सबको फ्यूचर में होना ही पड़ेगा ऐसा कुछ? Do you think? हम जितना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उन लोग के लिए भी इंडस्ट्री बहुत ओपन अप हो रहा है।
बट वी रियली डोंट नो व्हाट फ्यूचर हैज़ इन होल्ड फॉर अस. जैसे एक दिन सडनली टिकटॉक चला गया, वी ऑल वर क्लूलेस. वो rules and regulations. But then, yes, till the time platforms like Instagram or YouTube will be there, the creator economy will keep on booming, keep on getting business. But yes, I feel uh, the creators need to focus more on, like, how the brands can also generate ROI through them. Everything is paid these days, but at the same time, जो जितना authentic होता है ना, in the longer run is it's more sustainable. अमेजिंग. सो सेम इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है कि हाउ शुड क्रिएटर बी, यू नो, कि उसका ब्रांड पर्सोना अच्छा हो. जैसे कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ क्रिएटर्स को, उनका ब्रांड पर्सोना बहुत अच्छा, ऑडियंस उसको अच्छे तरीके से परसीव करती है. अगर वो कुछ लगाता है स्टोरी या कुछ भी चीज़ें, तो नॉट व्यूज ऑल्सो, इट सीम्स कि कन्वर्ट भी होता है. लाइक इन फाइनेंस इंडस्ट्री देयर इज फाइनेंस विद सरन, ही इज सो पॉपुलर. Right. और सारी चीज़ें. तो हाउ शुड ए क्रिएटर अप्रोच दिस ताकि उसका ब्रांड पर्सोना शुरू से खराब ना हो, और ये चीज़ें ताकि उसको ऑडियंस उस तरह से परसीव करे, ट्रस्ट वाला फैक्टर बिल्ड हो. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सूर्या, बॉट मत करो. Very important in the like, to get collaborations, don't just jack up your follower base or your views. वो दिखता है, वो मतलब हम सब एजेंसीज के पास वो टूल होते हैं दैट वी कैन असेस ये कितने व्यूज बॉट हैं या कितने कितने फॉलोअर्स फेक है. फिर आपको ना उसी हिसाब से आपके प्रोफाइल के ऊपर कॉस्ट मिलता है. ऐसा नहीं कि कोई 1 लाख प्लस फॉलोअर बेस है उसको बहुत अच्छा कमर्शियल, सिमिलरली 1 लाख जेन्युइन फॉलोअर बेस है उसको उतना मिल रहा है. सो दैट पैरिटी वी ऑल नो. If it's a bot follower base of 1 lakh, and if it's a bot, and if it's a real follower base of a lakh follower, for an influencer, what is the difference in cost? Second thing is content quality. आपको अपना एक सब्जेक्ट, जैसे आपने बोला ना, finance with Sharan, these creators have made it so big because they all stick to the core. तो जो आपकी मैसेजिंग है आपके प्रोफाइल की, अगर आपको फैशन क्रिएटर बनना है तो आप फैशन ही बनो. डू लॉट ऑफ कंटेंट इन फैशन कि आपको इमीडिएटली ब्रांड्स पिकअप. सो मेक सेंस. योर कंटेंट शुड गेट इनटू द वायरल मोड. ऐसा कंटेंट बन, नॉट मेक्स. ऑलवेज कि हमको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल है, मेरे को अपना ना सब जैकअप करना है. सो नॉट लाइक दैट. You should be consistent in your approach in terms of uploading content. Your content quality should be very good so that it catches the brand side. And अगर कोई ब्रांड आपका नाम पूछता है कि नहीं मुझे इसी क्रिएटर से, दैट मीन्स देन आप फिर अपनी बोली लगा. आपने कुछ तो किया है. तो मैं ये पूछ रहा था कि लेट सपोज कोई एक्स वाई जेड ब्रांड है, तो वो ये देखता है क्या कि क्रिएटर का ब्रांड परसोना कैसा है. लेट सपोज कि वो टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के, लाइक अगर वो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से कर रहा है और ब्रांड उसको टारगेट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी देखते हैं क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तो होता है, कहीं मैंने पढ़ा था ये. आई एम जस्ट फैक्ट चेकिंग कि ये सही है कि नहीं. अगर ब्रांड किसी क्रिएटर को देखता है तो वो देखता है कि उसकी ऑडियंस किस तरह की है. कहीं वो टीयर 3 सिटीज से, और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो डेट इज नॉट फॉर टीयर 3 सिटीज या उस तरह के लोगों के, आई एम फॉर ओनली टीयर 1. ऐसा कुछ होता है? एब्सोल्युटली ब्रांड्स देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है ना, वो आपकी कंटेंट से. सो इफ आई एम एन एफएमसीजी ब्रांड टारगेटिंग अ टीयर 2 टीयर 3 सिटी, मेरे को बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट क्रिएशन नहीं चाहिए. वो वर्क नहीं करेगा, मेरा ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगा. आई वॉन्ट लाइक एन एवरेज कंटेंट जो अच्छा मतलब दिखता भी हो और जिसका कम्युनिकेशन भी मेरी जनता के समझ आए. वहाँ पे मेरा टीयर 2 टीयर 3 वाला, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स जो वैसी रीच देता है, हम उन्हीं को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली. सो देर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू हैव लाइक अ टीयर 2 टीयर 3 ऑडियंस. देर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू ओनली हैव अ टीयर 1 सिटी का ऑडियंस. You have different brands targeting in both the sectors, but you as दैट्स a सो ट्रू. creator have to identify a niche which is very important and stick to that niche from day one. आपका प्रोफाइल बहुत एस्थेटिकली इंक्लाइंड होना चाहिए. एग्री. अच्छा, एक
एक चीज़ और है, मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जैसे आपने लास्ट मीट में ही बताया था। सो अगर कोई आपके पास ब्रांड है, एक बार आप जस्ट रिकॉल कर दो हमारी ऑडियंस के लिए। आपने बताया था एंड आई आई नो रिमेम्बर, मुझे याद भी है, बट फिर भी फॉर आवर ऑडियंस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो आप इन वो कैसे करते हो, अप्रोच कैसे करते हो, कि जैसे ये एक्स ब्रांड है, तो आपने जैसे कि बताया था कि अगर कुछ आता है कोलैबोरेशन, तो पहले माइक्रो क्रिएटर्स के पास, फिर मिनी क्रिएटर्स के पास, और कुछ वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है जो आप बताया था कि तीन चार ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हो इन्फ्लुएंसर्स को, और उस हिसाब से चीज़ें वो करते हो, तो एक बार आप वो बता दो। सो सूर्य, जब कोई ब्रांड हमारे पास आता है ना, हम सबसे पहले ब्रांड का प्रोडक्ट लाइन देखते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कराना है प्रीडोमिनेंटली। सो अगर कोई एफएमसीजी ब्रांड आ रहा है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स होते हैं, बट देन दे फोकस प्रोडक्ट कुड बी जस्ट 2 or 3 फोकस प्रोडक्ट्स, जिसमें अगेन वी प्रोब सच क्वेश्चंस टू ब्रांड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। इज इट Tier 2 Tier 3 सिटीज़ और Tier 1 सिटीज़? किस टाइप के लोग ये खाना पसंद करते हैं, या किस टाइप के लोग ये यूज़ करना पसंद, वट एवर इट इज़, आई मीन वो जिस कैटेगरी का भी ब्रांड है, वी टेक दीज बेसिक क्वेश्चन। का कॉस्ट क्या है? अगर कोई प्रोडक्ट मेरा 2,000 रुपया का बिकता है यूनिट कॉस्ट, डेफिनेटली वो उसको छोटा क्रिएटर से मेरे को कुछ नहीं आने वाला, ब्रांड इज नॉट गोइंग टू सी एनी कन्वर्जन, बिकॉज अ स्मॉल क्रिएटर 2,000 से लेकर 20-25 हज़ार का फॉलोअर बेस वाला क्रिएटर मेरे को विजिबिलिटी, यप। राइट, बहुत ज़्यादा मैं उनसे कन्वर्जन का एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट, दे क्रिएट वेरी बेसिक कंटेंट which has to be done in mass to create that algorithm may effect about the brand, राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने ब्रांड की ऑडियंस को समझूं, उसी हिसाब से आई मैप द इन्फ्लुएंसर्स फॉर इट। अगर मेरा कोई सपोज 5 रुपया का, इफ इट्स एन एफएमसीजी ब्रांड, सपोज कोई चॉकलेट ही बनाते हैं 5 रुपया का, उसके लिए तो भर भर के नैनो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स विल डू वंडर्स फॉर देम, बिकॉज मुझे उन्हीं जनता को रीच आउट करना है। दैट्स सो ट्रू। बट अगर मेरा 2,000 का प्रोडक्ट है, देन डेफिनेटली आई गो फॉर अ हायर क्वालिटी माइक्रो और अ मैक्रो क्रिएटर, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो, जो शक्ल से एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि हम लग्जरी बेच रहे हैं, शौक बेच रहे हैं। तो शौक शौक के लिए मेरे को ना वो इम्पल्सिव बाइंग के मोड में जाना पड़ेगा। मैंने दिखाया, मेरा मन किया, मैंने खरीद लिया। वो लोग प्री प्लान शॉपर्स नहीं होते कि नहीं मेरे पास इस महीना इतना ही खर्च। सो मुझे इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव टारगेटिंग अ नीश सेक्टर, तो मेरी कम्युनिकेशन भी वैसी होनी चाहिए। मेक सेंस, टोटली एग्रीड। सो श्वेता, लाइक एक दो चीज़ें और हैं मेरे दिमाग में, राइट। सो जब आप एक इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हो, या इन्फ्लुएंसर्स जो भी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, सो कैन यू टेल अस कि हाउ मच दे दे कैन अर्न इन एन एवरेज, रफ आइडिया जस्ट, कि कितना वो कमा लेते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, इफ यू से, आई मीन मैं बहुत ही छोटे फॉलोअर बेस से भी शुरू करी हूँ। आई मीन इवन इफ इट्स लाइक अ रीपोस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, I think they can earn anywhere from 200 rupees per collaboration to even goes up to even 2 lakh, 3 lakh, depending upon the profile, for a 30-second reel, जिसमें हम प्रोफाइल में मैं अगर 200 रुपये बोल रही हूँ, या वहाँ पे I'm just for 200 rupees I'm just seeing a normal repost which the creator gets. The agency charges a separate thing, but the creator gets this amount, 200 rupees. The you can aram say, if you have like a follower base of 2,000 plus, you can also start earning this much from a repost campaign. How much you have maximum paid to an influencer? I work with nano, micro, and macro, smaller macros, not very big macros. So in Creator Cult, I have paid around 2.6 lakh to a macro creator for just a 30 Amazing. second video. Now I think everyone should become influencer. वो किया है। एंड देर आर टाइम्स जब हम क्रिएटर्स
अगर कोई क्रिएटर हमारे साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट भी सूर्या, if they have performed well for our brands in terms of like timely deliverables, they कोऑपरेट करना एजेंसी के साथ। ब्रांड्स भी कभी कभार होता है कि वो लास्ट मिनट में कुछ चेंज कर, सो दे एक्सपेक्ट सम कोऑपरेशन फ्रॉम द क्रिएटर साइड। सो इफ दे डू दैट ना, एक चीज़ हम इंश्योर करते हैं कि उनको रिपीट बिजनेस मिले हमारे साइड से। सो देयर हैव बीन टाइम वेर आई हैव इवन पेड 7 lakhs टू क्रिएटर्स जिनको इतना रिपीट बिजनेस मिला है। Wow, सो यस। that's so cool. So now I'm going to go deep into your business, right? So I'm like I'm just curious about the money breakdown. Like when you close a brand deal for let's say X amount, right? So how much does the agency keep and how much it goes to the influencer? Like ये इसका क्वेश्चन मत math क्या पूछो है? यार। I just want to understand the math कि अगर कोई आ रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन जनरल एजेंसी बिल्डिंग में, अगर कोई ब्रांड अप्रोच करता है तो कितना ये मैथ वर्क करता है, कितना वो रहता है? 30 से 50% इज समथिंग विच यू शुड कीप एज अ मार्कअप। रीजन बीइंग वो आपका ऑपरेशन कॉस्ट कवर करता है, उसमें आपके रिसोर्स कॉस्ट है, उसमें आपका टाइम कॉस्ट है, विच इज सी दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटेंजिबल। ब्रांड आपसे बोल सकता है अरे आप तो इसको इतना पे करो, मेरे से आप डबल क्यों, हाँ, बट ट्रू। वो डबल इसलिए ले रहे हो बिकॉज आप उसका टाइम मैन, राइट। आप उस टाइम में इफ यू आर एन एक्सपेंसिव रिसोर्स, आपको आपका मैन आवर कॉस्ट है। आई मीन अगर आप उसका ब्रेक डाउन करने जाओ तो उस हिसाब से तो यू आर नॉट चार्जिंग दैट मच। सो मिनिमम आई फील 30 से 50% इज वॉट यू कैन मेक, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रांड का उसमें कितना ऑल्ट्रेशन होगा, वेदर इट विल बी अ स्मूथ कैंपेन और इट विल बी अ ट्रिकी कैंपेन। that's something which depends upon the gut and impulse, बट 30 से 50% इज द मार्केट स्टैंडर्ड। लोग इससे भी ज्यादा लेते हैं, हम इतना ही लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। अमेजिंग। मेक सेंस। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में या फिर इन जनरल एजेंसी बिल्डिंग में, सो व्हाट डू यू हैव सीन, लाइक यू टॉक विथ अ लॉट ऑफ पीपल, सो व्हाट डू यू थिंक कि टॉप 3 मिस्टेक्स क्या होते हैं जो लोग करते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट? मे बी उनमें से आपने भी कुछ किया हो, फिर फिगर आउट किया हो, सो व्हाट डू यू थिंक अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो ये 2-3 चीजें तो नहीं करनी है, राइट? सो डू नॉट स्टार्ट ऑफ टिल यू नो द नीश विच सेक्टर यू वांट टू गेट इनटू। आपकी क्लाइंटेल कौन, अगर आपके पास क्लाइंट का डेटाबेस है बट आपके पास क्रिएटर्स नहीं, that's also a mix mismatch because timely execution is the essence for any influencer marketing। हमारे पास इतने स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस आते हैं रिपोस्ट कैंपेन में कि 24 घंटा में 3,000 लोग को लाइव लेकर जाओ, दिस इज द वीडियो। मेरी टीम पूरा मतलब सुबह से लेकर उसको शाम तक में 3,000 लोग को लाइव लेकर जाती है। So this is the kind of I mean you need to be very apt in terms of how soon you can service the brand। आपका क्लाइंटेल आपके हाथ में, यू नीड टू आइडेंटिफाई किस सेक्टर को आपको करना है। बिना उस नीड के एनालिसिस के आप स्टार्टअप मत करो कि आपको फाइनेंस सेक्टर में ये अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है, कि आपको एफएमसीजी सेक्टर या नैनो कैंपेन्स या माइक्रो कैंपेन्स या यूजीसी कैंपेन के लिए एजेंसी क्रिएट करनी है, वो करो। यू नीड टू आइडेंटिफाई हु आर योर टॉप 10 और 20 क्लाइंट्स जिससे आप पहले से बात करना शुरू कर। आई मीन कोई भी चीज़ शुरू करने से जब अपने टीम को भी लेकर आओगे दैट्स अ कॉस्ट। मेरे पास मेरा ब्रेक इवन कॉस्ट तो आए एवरी मंथ कि मैं उनकी सैलरी पे वो अपने जेब से नहीं लगाना पड़े। सो ट्रू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज आई नीड टू हैव सम डेटा ऑफ द पीपल विथ whom आई वुड बी वर्किंग विथ। ये 2-3 चीज़ अगर यू आर गुड टू गेट स्टार्टेड। एजेंसी के लिए बस एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए सो दैट द ब्रांड शुड ट्रस्ट यू कि आप कोई फ्रीलांसर एजेंसी नहीं, you are an established agency, you can even work from home and brands support that। I mean we always tell the brand that we work from home, we don't keep it we don't keep them in dark। हमारी टीम दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में स्प्रेड आउट है, सब बताते हैं। एंड कोई ब्रांड अगर मिलना चाहता है, अगर कलकत्ता का ब्रांड है तो फेस टू फेस जाके मिलते हैं, दिल्ली का ब्रांड है तो अपने ऑफिस स्पेस में बुला लेते हैं वे द टीम मीट्स वंस अ वीक।
So that kind of transparency we keep with the brand, because ultimately what really matters, na Surya, it's it's the work that you deliver, it's the service that you give to your clients. True, true. That is There are what so matter at the many end. clients, हमारी शक्ल नहीं देखी है, सिर्फ हमारी आवाज सुनी है, but they have trusted us with lakhs of business. Touch wood. At the end, result matters. True, totally agree Yes. with you. So, like in your experience, आपको लगता है कि like there is a war between YouTube versus Instagram. आपको क्या लगता है कि ब्रांड पर्सोना जो होता है वो ज़्यादा किस क्रिएटर को होता है? लेट्स सपोज कि मैं क्रिएटर हूँ, आई स्टार्टेड creating content on YouTube versus Instagram, and if X is a brand, then वो ज़्यादा trustworthy या brand persona they are creating on YouTube or Instagram? What do you think? So honestly, I mean दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है. इंस्टाग्राम इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. इंस्टाग्राम के कंटेंट हार्डली 48 से 72 आवर्स तक ही पुश आता है, उसके बाद एल्गोरिदम भी पुश नहीं करता. बट Yeah. यूट्यूब कंटेंट इज समथिंग कि अगर आपको एक हफ्ता में पता भी चल गया ना मैंने 25,000 व्यूज दिए, हो सकता है एक साल बाद वो ना 2.5 लाख व्यूज हो जाए, इफ इट मैचेस द एसईओ, जो इंस्टाग्राम में कभी नहीं होगा. इंस्टाग्राम में अगर 25,000 व्यूज है तो हो सकता है एक साल बाद उसमें 26,000 व्यूज हो या 27,000 व्यूज हो, पर वो सीधे 2.5 लाख नहीं होगा. Yeah, राइट. agreed. यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म, यस आई मीन क्रिएटर, कोई 10,000 फॉलो बेस का क्रिएटर यूट्यूब में है, वो मेरे से ज़्यादा पैसे चार्ज करे टू क्रिएट अ डेडिकेटेड और एन इंटीग्रेटेड और अ शॉर्ट्स वट एवर द ब्रांड वॉन्ट्स. बट वही क्रिएटर अगर 10,000 फॉलो बेस का आपका इंस्टाग्राम में होगा तो मेरे से बहुत ही कम चार्ज करेगा, बिकॉज वो सीपीवी दोनों प्लेटफॉर्म का बहुत वेरी करता है. जहाँ पे ब्रांड्स डिसाइड करते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम चाहिए कि यूट्यूब चाहिए. अगेन अगर कोई ब्रांड सपोज कंस्ट्रक्शन में या सपोज रियल ज्वेलरीज बनाते हैं वेयर द प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, और फर्नीचर में, तो देयर ऑब्वियसली अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर विल डू वंडर्स. अगर कोई स्टोर विजिट कैंपेन है फॉर अ फैशन ब्रांड, यूट्यूब विल वर्क वंडर्स फॉर देम. इवन इंस्टाग्राम विल डू वेरी वेल फॉर देम, बट यूट्यूब में वो वीडियोस रह जाते हैं और वो उनके एसईओ से मैच करके ना दे कीप ऑन गिविंग यू रिजल्ट्स till the time the algorithm is there, the platform is there, sorry. अमेजिंग. अच्छा, श्वेता, लाइक अगर कोई लार्ज ब्रांड्स है, लाइक बहुत बड़े ब्रांड है और स्टार्टअप्स है, तो ये दोनों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, राइट? लाइक दोनों का ऑब्वियसली देखने का तरीका अलग होगा, मे बी लाइक यू कैन टेल बेटर. सो हाउ डू दे अप्रोच टुवर्ड्स इट? So startup brands now, Surya, they are very experimental. They really know what they want out of the influencers. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि जो एफएमसीजी ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश्ड है उन्हें नहीं पता, बट वो बहुत ही ट्रेडिशनल एंड बहुत ही लॉन्ग, मतलब वहाँ पे अगर वो इन्फ्लुएंसर्स करते भी है ना 5,000, वेयर दे नो कि मेरे को इस इन्फ्लुएंसर से ना ऐसी ब्रीफ सी चाहिए. बट अगर कोई स्टार्टअप ब्रांड है उसमें 5,000 इन्फ्लुएंसर्स करने का अभी नहीं है वैसा बजट. सो वो अगर मेरे से माइक्रो ले रहा है या यूजीसी ले रहा है, उसको पता है एग्जैक्टली उससे क्या कराना है. कोई एक क्रिएटर से वो एक अलग ब्रीफ कराएगा, कोई दूसरे क्रिएटर से वो दूसरा स्क्रिप्ट कराएगा, और वहीं पे इफ इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट. In fact, both of them know what they want, but keeping in mind the budget and everything, दोनों अपने हिसाब से उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. वहाँ पे अलग ही अगर कोई कोई एक स्टैब्लिश ब्रांड होता है एफएमसीजी में, they have specific nano influencer campaigns, micro influencer campaign, where the briefs is also very different from each other. But if it's a startup brand, probably they will just start off with UGC campaigns, because obviously they don't have that much of budget to shell out on a nano or a micro. Because अगर आपको visibility चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पंप करने पड़ेंगे on influencers so that you can break the algorithm. ब्रांड्स होते हैं, दे डोंट वांट व्यूज, दे वांट सेल्स. तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जो उनके लिए वर्क करता है, राइट, सो कन्वर्जन रेशियो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, राइट? लाइक कि और ये रियलिस्टिक, आई वांट टू नो कितना रियलिस्टिक होगा. लाइक यू हैव वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स प्लस इन्फ्लुएंसर्स. सो एक रेशियो क्या होता है अगर कोई वो जाता है, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बताता है कि मेरा रेशियो ये है वो है, तो यू कैन टेल बेटर.
ऑनेस्टली सूर्या, ये इन्फ्लुएंसर को भी नहीं पता चलता है क्या सेल्स है, नीदर हमें पता चलता है, बिकॉज हाँ, सो बिकॉज वो एक्सेस टू द डेटा नन ऑफ अस हैव, एंड नीदर हमारा वैसा अंडरस्टैंडिंग होता है इन्फ्लुएंसर के साथ कि अगर आप इतना सेल दोगे तो हम आपको इतना रेवेन्यू देंगे, बिकॉज उस बेसिस पे कोई वर्क भी नहीं करता। दे चार्ज एज पर देयर प्रोफाइल, एज पर द रीच, एज पर द कंटेंट that they will do for the brand. They charge accordingly, and if the brand is getting results from the creator, वो repeat भी करते हैं, so it does not stop this, but वो result क्या, वो ROI, I think I would also not be in a position to share. कोई ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं, कोई ब्रांड, सपोज मेरे लिए एक स्टार्टअप ब्रांड था जिनके लिए हमने एक बेबी प्रोडक्ट का यूजीसी किया। दे मैसेज्ड मी पर्सनली सेइंग कि श्वेता, मैंने 500 पीसेस ही बनवाए थे और वो एक यूजीसी से मेरे को मोर देन 500 ऑर्डर्स आया, दैट वी हैव टू स्टॉप द यूजीसी इन मिडवे। हम उस ब्रांड को इतने प्रोफाइल्स दिखाते हैं, बट वो ब्रांड हमेशा उसी क्रिएटर को नहीं, ये तो दो ही, इसके साथ कोई, so the brands at times they do share with us, but many a times we don't get access to that data. This is a very interesting line. If a founder becomes an influencer, it is very important. चाहे आप विनीता सिंह को देख लो ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, आप ममा अर्थ के गजल अला को ले देख, आई मीन सुनील शाह फ्रॉम ब्लू टी, वो खुद ही इतने Yes. बड़े इन्फ्लुएंसर है। I mean, everybody knows him in the industry. So, yes, it is very important to have a face to a startup. You need to make noise to at least, make yourself heard in the market. And आप जिस इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, सो आई थिंक वो होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। You need to think like them to actually have them on board. आई मीन वो वर्सिटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस यू थिंक एंड बिहेव लाइक एन इन्फ्लुएंसर, आप इस कम्युनिटी से काम नहीं करवा। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। आई मीन इट्स बोथ वेज, हमें ब्रांड के साथ भी रहना पड़ता है एज वेल एज इन्फ्लुएंसर्स, देन वी हैव टू ब्रिज अ गैप। True, true. So now I will ask you, some rapid fire questions. Like you have to choose either this or that, right? ओके And you can give 1 2 line explainer also. It's up to you, ओके right? Because this is something interesting. So you just यस have to यस choose, right? श्योर श्योर। So where do you think more money is, like in freelancing or owning a agency? Keeping the challenges also in mind. आई फील एजेंसी। नहीं, फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो एजेंसी पे। एक पर्सन कितना ही कर लेगा फ्रीलांसिंग में, एक, हाँ, दैट्स करेक्ट द थिंग। दो हाथ दो पैर से, मतलब वर्क राइट, कितना ही कर लोगे आप, दैट्स द थिंग। करेक्ट करेक्ट। या okay, my next question is, which is more good, like niche specific agency or all rounder agency, right? I know the answer, but what do you ऑलराउंडर think? एजेंसी। But why did you suggest me about niche based agency last meetup? सी ऑलराउंडर एजेंसी में किसी, वी ऑल्सो डू नैनो, वी डू माइक्रो, वी डू मैक्रो, वी डू यूजीसी। हमारे पास 4 ऑप्शन है देने को मार्केट में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, वी हैव वर्कड इन दिस स्पेस। मैंने आपको इसलिए बोला, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ ना, आपके पास अगर आप एक चीज से से आपके 10 एवेन्यूज खुलते हैं कि चलो अगर मैंने नैनो नैनो इन्फ्लुएंसर का रीपोस्ट, अरे मैं अमेजोन रिव्यूज भी करवा सकती हूँ। सो एक सेक्टर से आप उसमें और 2-3 चीज आ सकती है। आप उसी नैनो क्रिएटर से, उसमें थोड़ा और पैसा है, ब्रांड इज पेइंग यू फॉर द कंटेंट क्वालिटी, बट आप शुरू तो एक जगह से। सो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम नैनो एंड माइक्रो, वी ऑल्सो न्यू कि हमारे को यूजीसी में क्या। सो मेरा जो फॉर्टे था, इट वॉज नैनो, माइक्रो, यूजीसी एंड टू सम एक्सटेंट मैक्रो, नॉट वेरी एक्सपेंसिव मैक्रोज। मैं कभी ब्रांड को नहीं बोलती हूँ 5 लाख रुपया मैक्रो में डालो या इवन 2 लाख रुपया मैक्रो में डालो। खुद से कोई ब्रांड बोलता है हमको इसी के साथ काम करना है, तब अलग बात, अदरवाइज वी ऑलवेज निकाल दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ब्रांड का प्रोडक्ट लाइन क्या है। Amazing, amazing. So, just to summarize, when someone is starting, they start with a niche based, and then you can, cater Absolutely. after some time. Like I said,
हमने क्रिएटर कल्ट फॉर्म तो किया था 1 साल हुआ है, बट इससे पहले हमारी ऑलरेडी ग्राउंड वर्क हो चुका था. Amazing, amazing. So, what do you think which is more easy, like influencer marketing or social media marketing agency? What do Which you is think? which is which is more Easy. easy. बताए, easy is a very subjective thing. मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है ना, तो मेरे लिए मैथ्स बहुत इजी है. अगर आपको मैथ्स अच्छा, आपको मैं जितना भी पढ़ा लूँ, आप बोलोगे एकदम बेकार सब्जेक्ट है, मुझे आता ही नहीं है मैथ्स, हमको नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट है. तो इजी, ये जो वर्ड होता है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव है. किसी के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है. दे आर पीपल हु आर मिंटिंग crores इन सोशल मीडिया. You have a regular source of income which keeps coming in. It works on retainership. Influencer marketing doesn't work on retainership. बट देन अगेन, उस रिटेनरशिप को सर्विस करने के लिए आपको वैसे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड भी करने पड़ते हैं. So I mean it completely depends where is your skill, so that you can ultimately get into that space, whether influencer marketing or whether social media. So I'll tell you, Shayak, he comes from a digital media space. उसकी एजेंसी आज तक डिजिटल मीडिया से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में नहीं जा पाई, बिकॉज दैट्स द नीश. या आज अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, वी टू सम एक्सटेंट वी प्रोवाइड सोशल मीडिया assistance to brand, but that's not a core. Even I think that like social media marketing agency, uh, like in comparison to influencer marketing is easy क्योंकि start करना बहुत आसान है. You don't need डाटा, जैसे कि आपने बताया कि influencers Correct, का डाटा correct, चाहिए and correct. brands का डाटा चाहिए. You just have one skill and you can cater to the market. So it's बट bit उसके लिए भी तो easy. क्लाइंट लाना पड़ेगा, बट उसमें Yes. पैसे बहुत ज्यादा नहीं है. Yes, yes, yes. If you are a freelancer, people bargain very hard with you. And you coming from Calcutta market, we all know how this market operates. It's a very price sensitive Don't market. ask me. Okay, so my next question is like, what works best for you? Like, client through referrals or cold emailing? Client who is referred. Sense. So word of mouth marketing is anytime the best form of marketing. Agreed, agreed. What's harder to manage for you, especially clients or creators? I mean, brands or creators? Creators, मैं आपको honestly बताती हूँ सूर्य, I don't interact with creators. So, and trust me, having said that, they are the most difficult breed to manage. Brands are comparatively more better and more empathetic to deal with. So वो समझते हैं कि हमारी भी problem क्या है. So I feel brands are easier to manage. 18 साल वही किया सूर्य, और कुछ नहीं किया है. Makes sense. So, same thing, like what's more powerful, do you think, like paid ads or organic influencer campaigns? Organic influencer campaigns, which should look Makes very sense. realistic. Yes, makes sense. What is more stressful to you, like pitching to a brand or negotiating with an influencer? Don't say that you haven't done. You just have to say. पिचिंग टू अ ब्रांड, वो रेट नेगोशिएशन वाला जो पार्ट होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है. इन्फ्लुएंसर स्टिल ठीक है, इन्फ्लुएंसर मैनेज होता है, चलो बिकॉज ठीक है, ये तो इन्फ्लुएंसर हमेशा अच्छे रेट ही देता है एजेंसी को. पर वही इन्फ्लुएंसर का ब्रांड के पास जाता है तो वो अपना रेट, बिकॉज उसको पता है यहाँ से मेरे को वन टाइम काम आने वाला है, तो एक ही बार में पूरा जितना लेना है ले लो. हाँ. that's all the thing which I have. Like अभी मैंने surface level पे श्वेता से बात किया है. We'll do the part 2 of this podcast where we'll go deep dive कि एक एक चीज कैसे करते हैं. But already we have 1 घंटे हो चुके हैं. So I think that's all for today's podcast. And I'm just glad that Sweta come here and इतनी सारी valuable चीजें we talked about these all things. So thank you so much Sweta once again. And I am happy to have you here and looking forward to our second part of this podcast. Likewise, Surya, thank you so much for having us over. Thank you so much, and looking forward to the next session.